নমস্কাৰ টাইমত বিগ নিউজলৈ স্বাগতম জনাইছো মই জ্যোতিদীপ বৈশ্য আৰু মই ঋতুস্মিন শৰ্মা এক বিশেষ খবৰ লৈ আহিছো এখন চৰকাৰে ইচ্ছা কৰিলে আসলতে কি কৰিব নোৱাৰে জ্যোতিদীপ আজি তাকে প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে কোভিডত ক্ষতিগ্ৰস্ত সকলৰ বাবে হয়তো ভাৰতৰ ইতিহাসত বৃহৎ ৰিলিফ পেকেজ এই মুহূৰ্তত দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে লৈ আহিছে আমি এটাকে কম কিন্তু এই সাহায্যৰ কথা শুনিলে আপুনিও হয়তো সেলুট দিবলৈ মন যাব এইগৰাকী দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এইগৰাকী দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কেনেকৈ ইমান সাহায্য দিছে ক'ৰ পৰা টকা পাইছে সকলো বিৱৰণ দাঙি ধৰিছে জনাইছো এটা ডাঙৰ খবৰ কোভিডৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালক দিল্লী চৰকাৰৰ বৃহৎ সকাহ কোভিডৰ ফলত অনাথ হোৱা শিশুসকলক মাহে 2500 টকাকৈ দিব দিল্লী চৰকাৰে কেৱল সিমানেই নহয় 25 বছৰলৈ তেওঁলোকক বিনামূলীয়া শিক্ষা প্ৰদান কৰিব 25 বছৰলৈ দিল্লী চৰকাৰে সাহায্য প্ৰদান কৰি থাকিব অনাথ শিশুক তাৰ লগতে যদি কোনো এটা পৰিয়ালৰ উপাৰ্জনকাৰীৰ কোভিডত মৃত্যু হৈছে মাহে 2500 টকাকৈ সাহায্য দিব কোভিডত নিহতৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালক 50000 টকাৰ সাহায্য দিল্লীৰ 72 লাখ পৰিয়ালক 10 কেজি বিনামূলীয়া ৰেচন দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ইয়াৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দিব 5 কেজি দিল্লী চৰকাৰে দিব 5 কেজি আৰু এই কথা ঘোষণা কৰিছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে এটা বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে কেৱল সিমানেই নহয় ৰেচন কাৰ্ড নথকা দৰিদ্ৰ পৰিয়ালেও এতিয়া ৰেচন প্ৰদান কৰিব লকডাউনৰ বাবে বৃহৎ সিদ্ধান্ত লৈছে দিল্লী চৰকাৰে আৰু ভাৰতৰ ইতিহাসত হয়তো সৰ্ববৃহৎ কোভিড সাহায্য হ'বলৈ গৈ আছে দিল্লী চৰকাৰৰ এই সাহায্য যদি শিশুসকল অনাথ হৈছে পিতৃ মাতৃৰ যদি মৃত্যু হৈছে 25 বছৰলৈ বিনামূলীয়া শিক্ষা দিব দিল্লী চৰকাৰে মাহে 2500 টকাকৈ দিব এজন উপাৰ্জনকাৰী যদি মৃত্যু হৈছে 2500 টকাকৈ দিব কাৰোবাৰ যদি পৰিয়ালৰ মৃত্যু হৈছে 50000 টকা দিব 10 কেজি ৰেচন দিব আৰু বহু সাহায্য কথা ঘোষণা কৰিছে জ্যোতিদীপ কিন্তু টকা ক'ত পাইছে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো আজি অৰবিন্দ কেজৰিৱালে সংবাদ মেলখাটত ঋতুস্মিন অৱশেষত তেওঁ উল্লেখ কৰিছে আমি ইমান বৃহৎ ঘোষণা কৰিছো মানুহৰ মনত প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে চৰকাৰৰ হাতলৈ ইমান হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা ক'ৰ পৰা আহিছে তেওঁ কৈছে 6 বছৰ আম আদমি পাৰ্টিৰ চৰকাৰে দুৰ্নীতি নকৰিলে তেওঁলোকে চৰকাৰী কামত টকা বচালে তাৰ লগতে আন বিভাগত যিসমূহ টকা এলোকেট কৰা হৈছে তাৰ পৰা টকা অনা হ'ব আৰু এই বিপদৰ সময়ত দৰিদ্ৰ লোকসকলক যিসকল প্ৰয়োজনীয় লোক তেওঁলোকক সহায় কৰা হ'ব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যেতিয়াই দিল্লীবাসীৰ বিপদ হ'ব তেতিয়াই অৰবিন্দ কেজৰিৱালক কাষত পাম আমি সেই মন্তব্য শুনাইছো আপোনালোকক जिनके दोनों माँ बाप की मौत हो गई उन दोनों माँ बाप की चाहे कोरोना से मौत हुई या ऐसे भी परिवार हो सकते हैं जिसमें एक माँ बाप में से एक पहले से ही उसकी मौत हो चुकी थी और जो दूसरे थे उनकी अब कोरोना से मौत हो गई मतलब दोनों में से एक की कम से कम कोरोना से मौत हुई और बच्चे अब अनाथ हो गए हैं ऐसे में हर बच्चे को 2,500 हजार रुपये महीना दिया जाएगा 25 साल की उम्र तक और उन बच्चों की शिक्षा फ्री की जाएगी उन बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिलवाई जाएगी तो ये हमने काफ़ी सोचा कि किस किस तरह से हम अपने लोगों की दिल्ली के लोगों की कोरोना की इस कठिन परिस्थितियों में मदद कर सकते हैं ये 4 अहम कदम दिल्ली सरकार उठा रही है अगले कुछ दिनों के अंदर इसको लागू कर दिया जाएगा कैबिनेट से इसको पास करा दिया जाएगा ऐसे कई परिवार हैं जिनके यहाँ कमाने वाले व्यक्ति की मौत हो गई वो व्यक्ति कमाता था हर महीने घर में कुछ लेके आते थे उन्हीं की वजह से परिवार चलता था ऐसे परिवारों में जिनमें कमाने वाले व्यक्ति की मौत हो गई उनमें वो एक्स ग्रेशिया अमाउंट के साथ साथ 2,500 रुपये महीने की पेंशन भी शुरू की जाएगी अगर पति की मौत हुई तो वो पेंशन पत्नी को मिलेगी पत्नी की मौत हुई तो वो पेंशन पति को मिलेगी अगर कोई व्यक्ति विवाहित नहीं था तो उसके माँ बाप को वो पेंशन मिलेगी लेकिन 2,500 रुपये उस परिवार को हर महीने पेंशन दी जाएगी जहाँ जिनके परिवार में कमाने वाले व्यक्ति की मौत हुई है ऐसे बच्चे ऐसे कई लोग हैं जिन लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई उन सभी लोगों से हमारी सहानुभूति है हम समझ सकते हैं जब अपने किसी की मौत हो जाती है तो परिवार के ऊपर
अपने ऊपर कितनी बड़ी घास गिरती है। आपके इस लॉस को, इस क्षति को हम पूरा तो नहीं कर सकते, लेकिन इस मुसीबत की घड़ी में आपको थोड़ी सी मदद कर सकते हैं। तो ऐसे हर परिवार को जिनके यहाँ कोरोना की वजह से मौत हुई है, उन्हें 50-50 हज़ार रुपये का मुआवजा दिया जाएगा, एक्स ग्रेशिया अमाउंट मुआवजा दिया जाएगा। तीसरा, कोरोना की इस महामारी के दौरान एक आम आदमी को चारों तरफ से मार पड़ रही है। कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगाना पड़ा है, लॉकडाउन की वजह से लोगों के रोज़गार ख़त्म हो गए। कई लोग ऐसे हैं जिनके घर में खाने की भी दिक्कत हो रही है, राशन की दिक्कत हो रही है। जिनके घर में कोरोना हो जाता है उनको 10 तरह की समस्याएं हैं। उनको बीमार आदमी को लेके अस्पताल लेके जाना पड़ता है। सरकारी अस्पतालों में तो इलाज मुफ्त है, लेकिन प्राइवेट अस्पताल के अंदर अच्छा खासा पैसा लग जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घर में उनके अपने लोगों की मौत हो गई, जो उनके कमाने वाले थे उनके घर में उनकी मौत हो गई। अब घर में कोई कमाने वाला नहीं बचा। कई बच्चे ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूं जिनके दोनों माँ बाप चले गए। कई बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके कमाने वाले बच्चे चले गए। पिछले कुछ दिनों से हम लोग इसी के ऊपर मंथन कर रहे थे कि किस तरह से इस वक्त, हम हमेशा कहते हैं कि दिल्ली के 2 करोड़ लोग हम सब एक परिवार हैं, किस तरह से इस वक्त हम लोगों की समस्याओं को दूर कर सकें। तो आज विचार मंथन के बाद 4 हम लोग घोषणाएं करने जा रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो 4 कदम हम उठाने जा रहे हैं, इससे लोगों को इस मुसीबत के वक्त में काफ़ी राहत मिलेगी। पहली चीज़, दिल्ली में 72 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास राशन कार्ड है। जिनके पास राशन कार्ड है उनको सरकार हर महीने 5 किलो राशन देती है, 4 किलो गेहूं, 1 किलो चावल। इस महीने ये 5 किलो राशन जब देती है सरकार हर महीने, तो उनसे थोड़े बहुत पैसे लिए जाते हैं। इस महीने ये राशन उनको फ्री दिया जा रहा है, उनसे पैसे नहीं लिए जाएंगे। इसके अलावा 5 किलो और राशन केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री जी की स्कीम के तहत और दिया जा रहा है, वो भी मुफ्त दिया जा रहा है। तो हर राशन कार्ड धारी को 10 किलो राशन इस महीने मिल रहा है, जो कि मुफ्त होगा। 5 किलो दिल्ली सरकार की तरफ से और 5 किलो केंद्र सरकार की तरफ से। लेकिन दिल्ली में केवल 72 लाख राशन कार्डधारी हैं। ये 72 लाख का कोटा केंद्र सरकार ने, हर राज्य का एक कोटा फिक्स किया है कि इतने ही राशन कार्डधारी होंगे। तो नए राशन कार्ड अभी नहीं बन सकते। लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो गरीब हैं, उनका राशन कार्ड नहीं बन पाया क्योंकि राशन का कोटा खत्म हो गया दिल्ली का। उन लोगों के लिए जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनको भी दिल्ली सरकार अब राशन देने जा रही है। जो लोग कहेंगे कि हम गरीब हैं, हमें राशन चाहिए, उन लोगों को राशन दिया जाए। আৰু এয়া আমি আপোনালোকক দেখুৱালো অৰবিন্দ কেজৰিৱাল আজি সংবাদ মেল পাতি এইকেইটা কথা উল্লেখ কৰিছে। ঋতুস্মিন, দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিবিলাক বৃহৎ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে, একেবাৰে ৰেচন দিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেঞ্চন দিয়ালৈকে, কোভিডৰ সংক্ৰমণৰ পাছত, সন্ত্ৰাসৰ পাছত হয়তো ভাৰতৰ ইতিহাসত ইমান এটা বৃহৎ সাহায্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা দিয়া হৈছে। এটা কল্পনা কৰিব নোৱাৰা সাহায্য প্ৰদান ঘোষণা কৰিছে তেওঁ। প্ৰথম কথা যে মূল উপাৰ্জনকাৰী যদি মৃত্যু হৈছে, তেন্তে তেওঁৰ পৰিবাৰ হওক বা নিকটতম আত্মীয়ক পেঞ্চন দি যাব। ইয়াতকৈ ডাঙৰ ঘোষণা কি হ'ব পাৰে? এটা পৰিয়ালক পেঞ্চন প্ৰদান কৰিব আজীৱন জীয়াই থকালৈকে। গতিকে এটা ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে। যিসকল শিশুৰ
অনাথ হৈছে কোভিডৰ ফলত তেওঁলোকক মাহে 2500 টকাকৈ দিব 25 বছৰ বয়স নোহোৱালৈকে কমপ্লিট শিক্ষা ফ্ৰী কৰি দিছে গতিকে ইয়াতকৈ ডাঙৰ ঘোষণা কি হ'ব পাৰে আচলতে সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ যে এখন চৰকাৰে যদি ইচ্ছা কৰে কি কৰিব নোৱাৰে অথচ আমাৰ অসমতো এনে সাহায্য দিয়াৰ কথা এটা দাবী উঠি আছে কিন্তু অসমৰ হয়তো ইমান টকা পইচা নাই কিন্তু অৰবিন্দ কেজৰিৱালে সকলোকে ডাঙৰ কথা এটা কৈছে যে তেওঁলোকে ইমান দিনে কৰাপশ্যন নকৰিলে দুৰ্নীতি নকৰিলে গতিকে তেওঁলোকে পইচা দিব পাৰিছে কিন্তু অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত যদি চাই এই দাবীটো বিভিন্নজনে উত্থাপন কৰিছে AIDFৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা অখিল গগৈৰ তৰফৰ পৰা সাধাৰণ লোকে চৰকাৰক দাবী উত্থাপন কৰিছে যিসকল লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে তেওঁলোকক সাহায্য দিয়ক কিন্তু এই মুহূৰ্তত অসম চৰকাৰে আবেদন জনাবলগীয়া হৈছে যে ৰাজকোষলৈ আপোনালোকে দান বৰঙণি দিয়ক যাতে কোভিডৰ যুদ্ধখন কৰি নিব পৰা যায় পাৰ্থক্যটো কৰবাত দিল্লী আৰু অসমৰ মাজত কিন্তু আহি গৈছে যদিও বিভিন্নজনে ক'ব বিচাৰে যে দিল্লী আৰু অসমৰ মাজত তুলনা নহয় হয় দিল্লী আৰু অসমৰ মাজত তুলনা নহয় কিন্তু অসমত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা সাহায্য বিচৰা হৈছে কোভিডৰ সৈতে যুদ্ধ কৰিবলৈ আৰু সেই মুহূৰ্তত দিল্লী চৰকাৰ অৰবিন্দ কেজৰিৱালে পেঞ্চন ঘোষণা কৰিছে বিনামূলীয়া শিক্ষা ঘোষণা কৰিছে মাহে 2500 টকাকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক দিম বুলি কৈছে 10 কেজি ৰেচন দিছে কাৰোবাৰ যদি ৰেচন কাৰ্ড নাই দুখীয়া তেওঁকো ৰেচন দিব গতিকে ইয়াতকৈ সৰ্ববৃহৎ ঘোষণাৰ কি হ'ব পাৰে হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ ঋতুস্মিন হাজৰিকাক তথ্য জনোৱাৰ বাবে কিন্তু পুনৰবাৰ আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ এটা ডাঙৰ খবৰ দিল্লী চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে এটা বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে আৰু ভাৰতৰ ইতিহাসত হয়তো ই অন্যতম বৃহৎ ঘোষণা হিচাপে পৰিগণিত হৈছে আমি ফুল প্লেটটো ভালদৰে দিবলৈ এই মুহূৰ্তত প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছোঁ এটা ডাঙৰ খবৰ আমি আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত জনাই আছোঁ কোভিডৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালসমূহলৈ দিল্লী চৰকাৰৰ বৃহৎ সকাহ কি কথা কোৱা হৈছে কোভিডৰ ফলত অনাথ হোৱা শিশুসকলক মাহে 2500 টকাকৈ 25 বছৰলৈ সাহায্য প্ৰদান কৰিব তাৰ লগতে বিনামূলীয়া শিক্ষা দিয়া হ'ব এই শিশুসকলক আজি অৰবিন্দ কেজৰিৱালে ঘোষণা কৰিছে বৃহৎ সিদ্ধান্ত লৈছে তাৰ লগতে কোৱা হৈছে যিসকলৰ পৰিয়ালৰ উপাৰ্জনকাৰী কোভিডত মৃত্যু হৈছে সেই পৰিয়ালক 2500 টকাকৈ মাহে সাহায্য দিব তেওঁলোকক 50,000 টকাৰ এককালীন সাহায্যও দিয়া হ'ব এয়া দিল্লী চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত দিল্লীৰ 72 লাখ পৰিয়ালক এই মাহত 10 কেজি বিনামূলীয়া ৰেচন দিয়া হ'ব 5 কেজি ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা 5 কেজি কেন্দ্ৰৰ পৰা আৰু এইসমূহ কিয় তেওঁলোকে কৰিব পাৰিছে কৈছে 6 বছৰ আমি দুৰ্নীতি নকৰিলোঁ তাৰ বাবে আমি কৰিব পাৰিছোঁ বুলি অৰবিন্দ কেজৰিৱালে উল্লেখ কৰিছে আৰু বিপদৰ সময়ত আম আদমি পাৰ্টিৰ চৰকাৰ বা আম আদমিৰ লগত দিল্লী চৰকাৰ থাকিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ঘোষণা কৰিছে মন্তব্য পুনৰবাৰ দেখুৱাই লৈছোঁ जिनके दोनों माँ बाप की मौत हो गई उन दोनों माँ बाप की चाहे कोरोना से मौत हुई या ऐसे भी परिवार हो सकते हैं जिसमें एक माँ बाप में से एक पहले से ही उसकी मौत हो चुकी थी और जो दूसरे थे उनकी अब कोरोना से मौत हो गई मतलब दोनों में से एक की कम से कम कोरोना से मौत हुई और बच्चे अब अनाथ हो गए हैं ऐसे में हर बच्चे को 2,500 हजार रुपये महीना दिया जाएगा 25 साल की उम्र तक और उन बच्चों की शिक्षा फ्री की जाएगी उन बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिलवाई जाएगी तो ये हमने काफ़ी सोचा कि किस किस तरह से हम अपने लोगों की दिल्ली के लोगों की कोरोना की इस कठिन परिस्थितियों में मदद कर सकते हैं ये 4 अहम कदम दिल्ली सरकार उठा रही है अगले कुछ दिनों के अंदर इसको लागू कर दिया जाएगा कैबिनेट से इसको पास करा दिया जाएगा ऐसे कई परिवार हैं जिनके यहाँ कमाने वाले व्यक्ति की मौत हो गई वो व्यक्ति कमाता था हर महीने घर में कुछ लेके आते थे उन्हीं की वजह से परिवार चलता था ऐसे परिवारों में जिनमें कमाने वाले व्यक्ति की मौत हो गई उनमें वो एक्स ग्रेशिया अमाउंट के साथ साथ 2,500 रुपये महीने की पेंशन भी शुरू की जाएगी अगर पति की मौत हुई तो वो पेंशन पत्नी को मिलेगी पत्नी की मौत हुई तो वो पेंशन पति को मिलेगी अगर कोई व्यक्ति विवाहित नहीं था तो उसके माँ बाप को वो पेंशन मिलेगी लेकिन 2,500 रुपये उस परिवार को हर महीने पेंशन दी जाएगी जहाँ जिनके परिवार में कमाने वाले व्यक्ति की मौत हुई है ऐसे बच्चे ऐसे कई लोग हैं जिन लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई उन सभी लोगों से हमारी सहानुभूति है हम समझ सकते हैं जब अपने किसी की मौत हो जाती है तो परिवार के ऊपर अपने ऊपर कितनी बड़ी गाज गिरती है
आपके इस लॉस को, इस क्षति को हम पूरा तो नहीं कर सकते, लेकिन इस मुसीबत की घड़ी में आपको थोड़ी सी मदद कर सकते हैं। तो ऐसे हर परिवार को जिनके यहाँ कोरोना की वजह से मौत हुई है, उन्हें 50-50 हज़ार रुपये का मुआवजा दिया जाएगा, एक्स ग्रेशिया अमाउंट मुआवजा दिया जाएगा। तीसरा, कोरोना की इस महामारी के दौरान एक आम आदमी को चारों तरफ से मार पड़ रही है। कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगाना पड़ा है, लॉकडाउन की वजह से लोगों के रोज़गार ख़त्म हो गए। कई लोग ऐसे हैं जिनके घर में खाने की भी दिक्कत हो रही है, राशन की दिक्कत हो रही है। जिनके घर में कोरोना हो जाता है उनको 10 तरह की समस्याएं हैं। उनको बीमार आदमी को लेके अस्पताल लेके जाना पड़ता है। सरकारी अस्पतालों में तो इलाज मुफ्त है, लेकिन प्राइवेट अस्पताल के अंदर अच्छा खासा पैसा लग जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घर में उनके अपने लोगों की मौत हो गई, जो उनके कमाने वाले थे उनके घर में उनकी मौत हो गई। अब घर में कोई कमाने वाला नहीं बचा। कई बच्चे ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूं जिनके दोनों माँ बाप चले गए। कई बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके कमाने वाले बच्चे चले गए। पिछले कुछ दिनों से हम लोग इसी के ऊपर मंथन कर रहे थे कि किस तरह से इस वक्त, हम हमेशा कहते हैं कि दिल्ली के 2 करोड़ लोग हम सब एक परिवार हैं, किस तरह से इस वक्त हम लोगों की समस्याओं को दूर कर सकें। तो आज विचार मंथन के बाद 4 हम लोग घोषणाएं करने जा रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो 4 कदम हम उठाने जा रहे हैं, इससे लोगों को इस मुसीबत के वक्त में काफ़ी राहत मिलेगी। पहली चीज़, दिल्ली में 72 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास राशन कार्ड है। जिनके पास राशन कार्ड है उनको सरकार हर महीने 5 किलो राशन देती है, 4 किलो गेहूं, 1 किलो चावल। इस महीने ये 5 किलो राशन जब देती है सरकार हर महीने, तो उनसे थोड़े बहुत पैसे लिए जाते हैं। इस महीने ये राशन उनको फ्री दिया जा रहा है, उनसे पैसे नहीं लिए जाएंगे। इसके अलावा 5 किलो और राशन केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री जी की स्कीम के तहत और दिया जा रहा है, वो भी मुफ्त दिया जा रहा है। तो हर राशन कार्ड धारी को 10 किलो राशन इस महीने मिल रहा है, जो कि मुफ्त होगा। 5 किलो दिल्ली सरकार की तरफ से और 5 किलो केंद्र सरकार की तरफ से। लेकिन दिल्ली में केवल 72 लाख राशन कार्डधारी हैं। ये 72 लाख का कोटा केंद्र सरकार ने, हर राज्य का एक कोटा फिक्स किया है कि इतने ही राशन कार्डधारी होंगे। तो नए राशन कार्ड अभी नहीं बन सकते। लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो गरीब हैं, उनका राशन कार्ड नहीं बन पाया क्योंकि राशन का कोटा खत्म हो गया दिल्ली का। उन लोगों के लिए जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनको भी दिल्ली सरकार अब राशन देने जा रही है। जो लोग कहेंगे कि हम गरीब हैं, हमें राशन चाहिए, उन लोगों को राशन दिया जाएगा।